तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल डिस्कस किए थे, है ना। बेसिक फंडामेंटल बहुत ही गलत शब्द है भाई, बेसिक फंडामेंटल, क्योंकि फंडामेंटल अपने आप में ही खुद बता रहे हैं कि वो बेसिक चीज है ना। और हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना है। अगर तुम्हारे बेसिक से क्लियर नहीं है तो मुझे नहीं लगता तुम्हें इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ो, हर एक चीज लाइन वाइज पढ़ो। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे वो क्या है, आज हम करेंगे पूरी के पूरी इंग्लिश में जो ग्रामर है ना, अगर इसको कर लें तो तुम्हारा ग्रामर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या है, देखो कोई भी सेंटेंस में पहले तो टॉपिक का नाम चल लेते हैं, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, कोई भी, मैंने तुम्हें बता दिया क्लॉज क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया वर्ड क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है, ये सारी चीजें तुम लोगों को पता है। आज हम क्या पढ़ेंगे कि सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या यूज होता है ग्रामर में। तो तुमने देखा होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। In the last class, we have discussed about subject, verb, and object. Now we are going to decide the future of sentence by using these things, subject and predicate. What do you mean by subject? Subject is something what we talk about. Subject is something what we talk about. किसके बारे में बात हो रही है? That is subject. किसके बारे में बात हो रही है? That is subject. And what about the predicate? Predicate is what is told about the subject. क्या बात हो रही है? Explanation, जो explanation होती है, that is the predicate. Subject is something which is related to doer. Who is doing the things? कौन काम कर रहा है? And what he is doing. So that is predicate. Predicate is something what is told about the subject. Okay. For example, in the simple words, we can remember subject is something which is what we talk about, and predicate is something what is told about the subject. Subject के बारे में क्या बोला गया है? Okay. Now we have some sentences to identify it. Rahul is playing cards with Ravi. So who is doing the things? Rahul. So Rahul becomes subject. And what he is doing, what the thing is playing a card with Ravi. So that is predicate. Again, the next sentence. Ajay has called the police. Who is the subject in a given sentence? Ajay. Who is doing the things? Ajay. And what he is doing, he called the police. That is the predicate. I will attend this seminar for sure. Who is going to attend? That is I, means subject. And क्या बात चल रही है उसके बारे में? That is predicate. But we talk about the subject. Okay, what if there are more than two words, two person, then it is known as compound subject. जब एक या दो से ज्यादा subjects होते हैं, that it becomes compound subject. For example, राहुल and रोहित दो इंसान, एक सब्जेक्ट नहीं है, एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं. That is why नाउन को जब हम यूज करते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, कई बार प्रोनाउन भी बना देते हैं. For example, Rahul is intelligent and smart. Rahul, rather than using Rahul, I can use he also. Because it's the first person. Huh? So Rahul and Rohit becomes compound subject, have won the match. That is predicate. Okay, next. Monica and her sister. Who is the doer in the given sentence? Monica and her sister. So it becomes compound subject. Are coming today. क्या बात हो रही है कि वो आज आएंगे. That becomes predicate. Next question पढ़ना काव्या. Neither the principal nor the teacher are excited for the trip. Okay. So who is the doer in the given sentence? Principal and teacher. ठीक है. So that becomes Compound subject. okay. और rest
आर एक्साइटेड फॉर द ट्रिप बिकम्स predicate. प्रेडिकेट। अच्छा, तब क्या होगा? अभी तो चलो तुम लोगों ने पढ़ा कि कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं, क्या कंपाउंड प्रेडिकेट भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। उसके भी एग्जांपल्स देखेंगे। ये है, क्या है? द टीचर एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड गेव होमवर्क। क्वेश्चन तो एक्सप्लेन किया ही, साथ के साथ में होमवर्क भी दिया। तो सब्जेक्ट कौन होगा? टीचर। ठीक है, क्या किया उसने? क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया एंड देन उसके बाद होमवर्क भी दिया। तो कंपाउंड मतलब दो या दो से ज्यादा चीजें मिली तो कंपाउंड प्रेडिकेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय कजन sang and danced. So subject becomes My cousin. my cousin. Sang and danced. So it becomes Predicate. compound predicate. Take it up. Next question. The dog barked loudly and chased the cat. So bark loudly, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? चेज द कैट। उसमें दो चीजें करें तो इट बिकम्स कंपाउंड प्रेडिकेट। एंड हु इज गोइंग टू डू दिस थिंग्स? दैट इज डॉग। द डॉग बिकम्स सब्जेक्ट। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत? Sir, हाँ compound subject और compound predicate एक सेंटेंस में आ सकते बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है सेंटेंसेस में दो भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल द डॉग एंड द कैट, हु इज गोइंग टू डू द थिंग्स? डॉग एज वेल एज कैट। तो वहां पे कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। और वहां पे जब प्रेडिकेट की बात हो, प्रेडिकेट भी हो सकता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। राहुल अनाउंस माय नेम। Subject is Rahul. Announcement is Rahul. ठीक है, माय फ्रेंड अनाउंस माय नेम। माय फ्रेंड इज अ सब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज और है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, यहाँ पे जो माई वर्ड है, कौन सा? माई। ये इन वर्ड्स को बोलते हैं डिटरमाइनर्स। ठीक है, अब ये जो माई हो गया, एक हो गया, दे हो गया, दैट हो गया, ही हो गया, शी हो गया, और जितने भी प्रोनाउन हो गए, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, वेरी फ्यू हो गया, इन वर्ड्स को डिटरमाइनर्स बोलते हैं। दैट डिटरमाइंस द सेंटेंस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डिटरमाइनर्स। और जब डिटरमाइनर्स होते हैं ना, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे हम, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। माय एल्डर ब्रदर अनाउंस माय नेम। तो सब्जेक्ट कौन सा होगा? एल्डर ब्रदर। और क्या किया उसने? अनाउंस माय नेम। ऐसा तो नहीं मेरा नाम कहीं गलत जगह नहीं लिया। ठीक है, तो दैट इज प्रेडिकेट। द लिटिल गर्ल, लिटिल कैट बताओ। Determining. एडजेक्टिव, लिटिल, स्मॉल, बिग, फ्यू, जिसमें क्वालिटी बताई जाए, दैट इज एडजेक्टिव। और एंड डिटरमाइनर्स। ठीक है, इन द कॉटेज, अगेन एडजेक्टिव चीजों को बताया जा रहा है। कहाँ तक? कॉटेज में। नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है। चलो ये तो सारी चीजें तो मैं बताऊंगा। ठीक है, मतलब यहाँ तक चीजें समझ में आई? तो जो डिटरमाइनर्स हैं उनको यहाँ पे लिख दिया है। कौन कौन से हैं? देखो, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्वालिफायर और दूसरे होता है मेन वर्ड या हेड वर्ड। मेन वर्ड क्या होते हैं? मेन वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन होते हैं। लाइक किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में भी वो कौन सा सब्जेक्ट है? फॉर एग्जाम्पल, मैं डॉग के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कैट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आंट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं हिमालयस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेन चीज क्या है? वो सब्जेक्ट का मेन वर्ड होता है। ठीक है, ये आंट के बारे में बात हो रही है तो मेन वर्ड हो गया, डॉग के बारे में बात हो रही है तो वो मेन वर्ड हो गया। ठीक है, क्वालिफायर्स तीन टाइप के होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, अब जो डिटरमाइनर्स होते हैं इट्स ऑलवेज यूज्ड बिफोर द मेन वर्ड। ठीक है, कीप इट इन आवर माइंड, डिटरमाइनर्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर द मेन वर्ड।
ठीक है, और कौन कौन से डिटरमाइनर्स होते हैं, ए एंड द, जो हमने आर्टिकल्स में पढ़े थे, ठीक है, सम, मोर, फ्यू, अ वेरी फ्यू ऑफ न्यू अबाउट द डिटरमाइनर्स, बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में, माइन, आर, योर, हिज, हर, इट, देयर, दिस, दैट, ये सारे के सारे क्या है, डिटरमाइनर्स हैं, और इनको याद रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इंग्लिश में बहुत जरूरी है। एडजेक्टिव फ्रेज or adjective is always used after the main word. कभी जब डॉग की बात हो रही है तो पहले एडजेक्टिव नहीं लगा सकते हैं, उसके बाद ही लगेगा कि डॉग कैसा है। ऐसे नहीं बोल सकता है कि जो डॉग है वो बहुत बेकार है, तो हमें क्या करना है, एडजेक्टिव फ्रेज बाद में लगता है मेन वर्ड के, ठीक है। एग्जांपल्स करेंगे तो और ज्यादा तुम्हें क्लियर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी चीज में डाउट? Adjective phrase we have discussed. Okay. तो देखो अब थोड़ा सा और क्लियर करने वाला टाइम आ गया है। क्वेश्चन क्या है, माई फ्रेंड, माई क्या है, डिटरमाइनर। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, माई होता है, दा होता है, इट होता है, हैज होता है, और ऑन, फ्यू, जो जितने भी वर्ड्स होते हैं वो डिटरमाइनर्स होते हैं। फ्रेंड, मेन वर्ड, किसके बारे में बात हो रही है, फ्रेंड के बारे में बात हो रही है, दैट इज द मेन वर्ड, ठीक है। अनाउंस्ड माय नेम, वो क्या हुआ, प्रेडिकेट। और अगर मैं बोलूं सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, माय फ्रेंड, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बात हो रही है, और क्या बात हो रही है, दैट इज प्रेडिकेट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। My elder brother announced my name. My again क्या है, डिटरमाइनर। elder कैसा भाई है, जहां पे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था which आ जाए या what kind of आ जाए, किस तरीके का भाई है मेरा, बड़ा भाई है, that is adjective। मेन मेन इंसान कौन है, brother। क्या किया भाई उसने, announced my name, that is predicate। The little girl from the cottage announced my name। तो जो एडजेक्टिव के यूज के लिए या हेल्प के लिए रखते हैं उसको बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। डॉट, डिटरमाइनर, लिटिल गर्ल, किस तरीके की लड़की है, छोटी लड़की है, व्हाट काइंड ऑफ, जहां पर आ जाए, दैट इज एडजेक्टिव। तो अगर मतलब हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर कुछ दे रहा है सेंटेंस में तो वो एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। हाँ, जिसमें फर्दर एक्सप्लेन करते हैं लिटिल गर्ल कहाँ से बोल रही है, कौन और कैसे बोल रही है, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है, ठीक है। अनाउंस माय नेम, अगेन इट इज अ टाइप ऑफ प्रेडिकेट, ठीक है। क्या किया उसने, अनाउंस कर दिया मेरा नाम, ठीक है। कहाँ पे कर दिया, असेंबली में तो नहीं कर दिया कि डांस करेगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता चाहिए। ओके, next sentence. A beautiful ring made of gold was found yesterday. A. डिटरमाइन, Determined. Beautiful. What kind of adjective? Ring. मेन वर्ड, Main word. और next जो ring है वो कलेक्टिव नाउन या मटेरियल नाउन भी तो है, नाउन भी हो सकता है। रिंग क्या है, थिंग है, और नाउन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, अ पर्सन, प्लेस, थिंग या नेम जो होता है वो दैट इज नाउन। तो रिंग नाउन भी है, सब्जेक्ट भी है, और मेन वर्ड भी है, ठीक है ना। किसके बारे में बात हो रही है, रिंग के बारे में बात हो रही है। किस चीज से बनी है, गोल्ड से, दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज। was found yesterday, क्या मिला, कहाँ मिला, that is predicate। Okay, next sentence तो पढ़ो। द टॉल गर्ल, द टॉल गर्ल इन द रेड शर्ट माइंड, Okay, that the determiner कैसा भाई है, tall एडजेक्टिव, या जैसी है, the whom, जो मेन वर्ड होता है उसको हम पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको जब उसके बारे में बात करते हैं तो मेन हम क्वेश्चन खुद से पूछ सकते हैं, who is going to decide, that is girl। तो girl becomes the main word। in the red shirt, किस टाइप की शर्ट है, रेड शर्ट, तो that is adjective phrase। is my cousin, that is predicate।
आई होप यहाँ तक तुम्हें चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ू। They walk books to a difficult to carry. हैवी बॉक्स। बॉक्स कैसा है? हैवी है। तो हैवी क्या है? क्वालिटी बता रहे। अगेन एडजेक्टिव। अब डिटरमाइनर। बॉक्स मेन वर्ड किसके बारे में बात हो रही है? बॉक्स के बारे में बात हो रही है ना? फुल ऑफ बुक्स। फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे बुक बॉक्स के अंदर क्या है। दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज। और रेस्ट पार्ट जो है वो क्या बन जाएगा? प्रेडिकेट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। The young teacher in the green sari explained the lesson. The young teacher in the green sari explained the lesson. The determiner हो जाएगा young. What kind of adjective? Teacher main word हो जाएगा. In the green sari किस टाइप की साड़ी है? Adjective phrase. Explain the lesson. क्या किया उन्होंने? Explain. और याद करो प्रेडिकेट के बारे में मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है? दैट इज प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट कौन है? वो जो जो डूअर है उस थिंग में। द यंग टीचर। अगर मैं पूछता हूँ कि इसमें सब्जेक्ट बताओ कौन सा है, तो सब्जेक्ट होता द यंग टीचर। ठीक है, और ग्रीन साड़ी बोले अगेन एडजेक्टिव बताया है, एडजेक्टिव फ्रेज है। तो भाई हम लोगों ने क्या क्या सीखा? प्रेडिकेट जो होता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, दैट इज वर्ब। वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रेडिकेट होता है वो वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब वो कैसे होता है? देखो, ऑब्जेक्ट कई बार डायरेक्ट भी होते हैं, कई बार इनडायरेक्ट भी होते हैं। डायरेक्ट का वो जब डायरेक्ट होते हैं तो उसका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है वर्ब से। ठीक है, उससे क्वेश्चन हम कैसे पूछ सकते हैं? वर्ब। ठीक है, इनडायरेक्ट बनता है तो किसने या कौन से, तो वहां पे हम क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? दो टाइप का होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अभी इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए प्रेडिकेट के तीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक तरह से जैसे हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेम गोस फॉर प्रेडिकेट। Predicate has three main parts, that is verb, object and complement. ठीक है, verb। जब हम वर्ब की बात करते हैं एक्शन वर्ड से याद आते हैं। दो वर्ब होती है, मेन वर्ब और एक होता है मेन वर्ब, और दूसरा कौन सा होता है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात करें, हर टाइम ऑब्जेक्ट की तो बात हो रही है। ऑब्जेक्ट होते हैं दो टाइप के, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट। कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखा gave me a puppy. Who is going to give? That is the doer. doer कौन है? रेखा। तो रेखा क्या बन जाएगी? सब्जेक्ट। दिया है उसने, दैट इज वर्ब। गिव की सेकंड फॉर्म, गिव, गेव, गिवन। किसको दिया है? मुझे, मी, टू whom, तो दैट इज प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट कैसे है? वो भी इनडायरेक्ट है। ठीक है, आप पपी क्या दिया है? एग्जैक्ट बता दिया क्या दिया है, दैट इज पपी। तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर इस तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं, रेखा गेव अ पपी टू मी। ठीक है, तो यहाँ पे पपी दिया है और किसको दिया है? मुझे दिया है। दैट ये भी सेंटेंस ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि यहाँ पे टू लगा हुआ। ठीक है, डायरेक्टली पता चल रहा है कि किसको दिया गया है? मुझे दिया गया। यहाँ पे कोई डाउट? चीजें समझ में आ रही हैं? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या इसमें सारी चीजें सही हैं? इसमें जो मैंने एक चीज नहीं लिखी
वो क्या थी बताओ? बिल्कुल। एक तो अरुण एंड गौतम, दो लोगों की बात हो रही है, तो ये कंपाउंड ही बन जाएगा। जो तुमने बताया था मेरे को कि क्या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट हो गए। टीचर्स अस इंग्लिश, तो वर्ड तो ठीक है। किसको टीच कर रहे हैं? अस। ठीक है, अस मतलब बहुत सारे लोग होंगे, तो इनडायरेक्ट है। क्या हमें पता चल रहा है कि किसको टीच कर रहे हैं? उनमें नाम किसका प्रॉपर पता चल रहा है? नहीं पता चल, तो वो इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट। और क्या चीज टीच कर रहे हैं दैट इज डायरेक्टली गिवन इन आवर सेंटेंस, दैट इज इंग्लिश। तो क्या आ रहा है तो वहां पे डायरेक्टली है, हूम आ रहा है तो वो इनडायरेक्टली है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। अरुण गौतम टीचर्स इंग्लिश टू अस। इंग्लिश डायरेक्ट बता दिया है किस चीज को टीच करने वाले हैं, इंग्लिश को। किसको टीच करेंगे? अस को। लेकिन क्या यहाँ पे नाम गिवन है? क्या यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे अरुण और गौतम का नाम तो पता है, तो ये तो सब्जेक्ट है, ये तो मुझे पता है। मेन वर्ड की बात करें, जब मेन वर्ड की बात करें तो वो भी अरुण और गौतम ही होंगे, क्योंकि वही तो इंसान का अंदर है। अस में हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो जो है कौन से लोग हैं। क्या पता क्लासरूम की बात हो रही, क्या पता प्रिंसिपल की बात हो रही है, क्या पता कोई असेंबली की बात हो रही है। तो द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, रेस्ट ऑफ द पार्ट बिकम्स द प्रेडिकेट। ठीक है, ये इंग्लिश टू अस ये प्रेडिकेट हो जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई? ओके, देखो क्या ये वाला सेंटेंस ठीक है? ठीक है ना? तो अगर मैं कि इसमें देखो ये बताओ डिटरमाइनर्स कौन कौन से हैं? My, my, मान, me, मी, oh, ठीक है, तो ये क्या है डिटरमाइनर्स में? मेन वर्ड कौन है? father, फादर is a kind of main verb presented again verb है। ठीक है, कई बार इसको एडजेक्टिव भी मान लेते हैं, लेकिन एडजेक्टिव में मेन वर्ब है। ठीक है, प्रेजेंटेड। फोन, फोन क्या है? now, नाउन, कोई दिक्कत? me. ठीक है, माई फादर वो तो अभी वही वाला सेंटेंस है। We didn't make one each वाला sentence. कौन सा वाला? और नीचे वाले sentence में फोन हाँ, इसको प्रपोजिशन या फिर डिटरमाइनर्स का यूज है। डिटरमाइनर्स के लिए तो ट्रिक है जो मैंने ऑलरेडी लिख दी है, बस इतने वर्ड्स को याद करना हो। कितने वर्ड्स को? कहाँ चला गया, बहुत ऊंचा आ गया ये। इनको नोट डाउन कर लो, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा जाता है। बस हो गया ना? तो ये मतलब मैंने डिस्कस कर लिया, ऑब्जेक्ट भी कर लिया, मुझे ये भी कर लिया, ये भी तुम्हें बता दिया, ये भी हो गया। ओके, मिस्टर शर्मा नेम हिज हाउस आनंद भवन, है ना? तो हु इज द सब्जेक्ट? मिस्टर शर्मा। क्या किया है उसने? उसने क्या किया है? उसने हाउस के नाम को बदल दिया है या नाम दिया है, दैट इज आनंद भवन। तो वो क्या होगा? प्रेडिकेट है। लेकिन कोई डाउट? नेम्ड वर्ब आ गया, हिज हाउस ऑब्जेक्ट हो गया, हिज हाउस अगेन क्वालिटी भी बता रहा है तो एडजेक्टिव भी हो सकता है। आनंद भवन नाउन भी तो है, नाउन नहीं है क्या? नाउन भी तो है। आनंद भवन जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि नेम गिवन है किसका? आनंद का।
है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी सिंपल वैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, प्रियंका कॉल्स मी जानू, ठीक है, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं बोल। तो प्रियंका क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, कॉल्स वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, जानू जो है ऑब्जेक्ट का फॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो चीजों के बारे में बात होगी, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मैं था बट वहां पे एक और नेम गिवन है, और यहाँ पे ये जो है नाउन भी हो जाएगा। अगर मी की बात करें तो मी क्या है, डिटरमाइनर। The members elected Rohan their president. The members क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट, इलेक्टेड क्या हो जाएगा, वाई, रोहन किसको, ऑब्जेक्ट। अच्छा बताओ ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट वाला है या इनडायरेक्ट वाला है, डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली नाम गिवन है, देयर प्रेसिडेंट, तो ऑब्जेक्ट कंपाउंड। आप वहाँ से डायरेक्टली में पेन यूज कर देते हो, साइड में एरो, उधर पेन का साइन, वहाँ से वो पेन लेके आप इधर में लिख सकते हो। ठीक है।